Good morning, class. Okay, so yesterday we had started the second part of the political science, and the name of the book is Political Theory. So in the first part we had talked about some introduction part relating to our book. So in which we understood the different meaning of political and what do we understand by theory, and entirely what content we are going to understand in this book. So basically this is a book which is the level of class 11, because the first part is totally based on the content and the knowledge which you have already studied class 6 to up to class 10. उसी का modification था, but everything you know, there was nothing new about it. In the second term also you will be studying about executive, judiciary, legislature. So these are the topics which you have already learnt in the junior classes, but here you will see some modification of those topics. But this is not a new for you, that book, but this is something new which we have discussed yesterday. And I hope you have a rough idea now, where I have tried to explain you in detail that what is the content we are going to study in this book. So from its word also you can understand political theory. We will be basically focusing on the theories based on political system. It means whatever political life we are seeing currently, जो हम everyday life में political system देखते हैं, जो आज है available, we talk of freedom, equality, justice, democracy, which is established already today. वो क्या हमारा practical, political, और वो किसके बेस्ड है? थ्योरी. जो पॉलिटिकल सिस्टम आज चल रहा है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन दिस थ्योरीज. सो वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड various thoughts of the scholars of the past. So we will study the roots, as I have told you. So in this book we will study the roots of the theories relating to the political system. So those theories will be based on some important scholars की help से हम पढ़ेंगे. हम अपने आप से नहीं बोल सकते हैं what do we understand by democracy or what do we understand by equality, freedom, फर्टिलिटी. सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो कहीं ना कहीं से इमर्ज हुए हैं, कैसे एस्टैब्लिश हुए हैं. तो कुछ ना कुछ स्कॉलर्स उसमें हमेशा हेल्पफुल रहे हैं, जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, अपने थॉट्स दिए हैं, अपने कांसेप्ट. तो यस्टरडे वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट. सो व्हेन वी हैव टू स्टडी दिस बुक पॉलिटिकल थ्योरी, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू. जो हमने इसका एग्जिस्टेंस जो हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, उन ह्यूमन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुआ. तो दोस वर, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम, आई नो बहुत सारे अभी भी नहीं बता पाएंगे. दोस वर रीजंस एंड एबिलिटी टू रिएक्ट, एंड अदर वाज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. तो उसको देखते हुए हमने ये सब्जेक्ट बनाया है पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि इसमें ज्यादातर हम क्या करेंगे, रीजंस पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालेंगे थ्रू वेरियस स्कॉलर्स. तो स्कॉलर्स ने कैसे कम्युनिकेट किया है हमारे साथ थ्रू देयर राइटिंग्स. हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने स्पीच, राइटिंग्स में, आर्टिकल्स में, थ्रू वेरियस बुक्स, थ्रू वेरियस स्टेटमेंट्स हमको बताएंगे कि पॉलिटिकल थ्योरीज हैं क्या. ओके, सो टुडे इन दिस चैप्टर, वो हमने कल डिटेल में कर लिया था डिस्कस, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, ऑल दोस कुछ एब्सेंट थे. So today the content would be what is politics. तो politics, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम आज का politics नहीं पढ़ेंगे, हम politics का क्या पढ़ेंगे, सारे dimensions. कोई word होता है ना, तो basically you have to understand if ये politics है, ठीक है, ये politics, तो इसके लिए एक का मीनिंग अलग होगा, इसके लिए मीनिंग अलग होगा, इसके लिए मीनिंग अलग होगा, इसके तो एक एक इंडिविजुअल है, ये लगा लो, and all of them have different meaning for politics. So we have to study this dimension of the politics also. We have to understand this dimension of the politics also. We have to understand this dimension of the politics, this dimension of the politics, and these dimensions. It means different people of the society have different meaning for politics. If I ask you, many of you must be having a thinking. अगर एक वर्ड बोलता हूँ पॉलिटिक्स, तो अलग अलग इमेज बनती है माइंड में. किसी के पॉलिटिकल लीडर्स बन रहे होंगे, किसी के हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी का लोगो बन रहा हो, किसी का इलेक्शन आ रहा होगा सिस्टम माइंड में, किसी के माइंड में पार्लियामेंट आ रही होगी. तो अलग अलग इमेज बनती है व्हेन वी थिंक ऑफ द वर्ड पॉलिटिक्स. किसका यहाँ लोकल लीडर भी हमारे कोई माइंड में आ सकता है. तो पॉलिटिक्स को अलग अलग हम टाइप से इंटरप्रेट करते हैं. मेरे लिए हो सकता है मैं पॉलिटिक्स को अच्छा मानता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके बिना हम फंक्शन एक स्टेप भी नहीं ले सकते हैं. लोगों के बीच में किसी भी एक बात पे क्या नहीं हो सकता है, कंसेशन नहीं बन सकता है, मतलब एक राय नहीं बन सकती है और कोई पॉलिटिकल सिस्टम ना हो. लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, रिसोर्सेज अलग अलग, जैसे हमने लोकल गवर्नमेंट में पढ़ा, जो अलग अलग फंक्शंस है उसके बीच में, लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. मेरे लिए आइडिया हो, दूसरे के लिए क्या हो सकता है कि पॉलिटिक्स कैसा है, इसमें करप्शन बहुत है, इतना पसंद नहीं करते हैं. मूवीज में भी हमने इस टाइप से देखा, पॉलिटिशियन के करप्शन बहुत करते हैं. तो अलग अलग एक्टिविटीज. तो वी विल ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस चैप्टर. अलग अलग लोगों के लिए उसका क्या मीनिंग. तभी हमने क्या बोला, पॉलिटिकल थ्योरी में हम हर एक कंटेंट की कहाँ तक जाते हैं, रूट्स तक जाते हैं. तो ये हमेशा रखना, हम इसमें जो भी पढ़ते हैं अभी तक 10th से ऊपर आप ग्राउंड लेवल के ऊपर की टॉपिक्स पढ़ते हुए आए हैं. पॉलिटिक्स भी आप हमें पढ़ के आए हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस. अब हमें मैंने बताया था रूट्स. तो अब ये पॉलिटिक्स है,
अगर हम पॉलिटिक्स का मीनिंग जानने की कोशिश करें तो हमें यहाँ तक तो पता है आपको सिंपल कि आज अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे रियल लाइफ में पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, आप राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबली, एमपी, एमएलए आपको सब पता है, बट इनके रूल्स क्या है, रियलिटीज क्या है, इसका मीनिंग क्या है अलग अलग लोगों के सोसाइटी के लिए, दैट विल अंडरस्टैंड। सो आई एम रीडिंग इट, इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यू विल बी इजीली एबल, बस ये दो थोड़े पैराग्राफ कॉम्प्लिकेटेड थे जो कल मैंने आपको समझाए, इसलिए टाइम लगा, इसमें सिंपल डेफिनेशन है, आई विल रीड दैट। यू वुड हैव नोटिस्ड दैट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट पॉलिटिक्स इज। जितने पीपल अभी हमारी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, कितने आज 24 हैं, तो 24 पीपल का हो सकता है डिफरेंट आइडियाज और रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स। ये तो बस क्लास है, अगर हम सोसाइटी की बात करें डिफरेंट कम्युनिटीज की, तो वहाँ पे और ज्यादा डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। एक कम्युनिटी दूसरी रिलीजन की हो, कास्ट की हो, लैंग्वेज बोलने वाली हो, डिफरेंट प्रोफेशन वाली हो, तो ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट आइडिया रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। So you would have noticed that people have different ideas about what politics is. Political leaders and persons who contest election and hold political offices may agree that it is a kind of public service. जो खुद पॉलिटिक्स में है, खुद पॉलिटिकल लीडर है, जो इलेक्शन लड़ते हैं, मतलब दे कंटेस्ट इलेक्शन, उनकी अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, दे आर डूइंग अ पब्लिक सर्विस, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग। अगर मैं पॉलिटिकल लीडर हूं तो मैं अपने आप को क्या मानूंगा कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं, आई एम गिविंग अ पब्लिक सर्विस। एक मीनिंग ये हो गया, ठीक है, वेरियस डायमेंशंस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है सम अदर्स एसोसिएट पॉलिटिक्स विद मैनिपुलेशन एंड इंटरव्यू अंडरटेकन टू परस्यू एम्बिशन एंड सैटिस्फाई वांट। एंड फॉर सम ऑफ द पीपल व्हाट दे थिंक ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स एक ऐसा मींस है वेयर वी फुलफिल आवर ओन और वी सैटिस्फाई आवर ओन नीड्स। हमारा मेन मोटिव होता है अपना प्रॉफिट निकालना। हम अगर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं, ताकि हमें प्रॉफिट हो, अलग अलग पॉलिसीज प्रोग्राम चलाएंगे, उससे पैसा हम क्या करेंगे, अपना आप ले लेंगे। तो एक टाइप से ये अपने मोटिव्स को फुलफिल करना, ठीक है, अपने एम्स को, एक हमने इस वे में ना है सेटिस्फाई वांट्स, तो एक शॉर्ट टर्म में क्या रखेंगे, सेटिस्फाई वांट्स। एक आइडिया ये है। अ फ्यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियंस डू। कुछ लोगों का मानना है पॉलिटिक्स क्या है, जो पॉलिटिशियंस करते हैं। हम रियल लाइफ में जो डेली हमारे माइंड में पॉलिटिशियंस की जो इमेज होती है वही पॉलिटिक्स है बस, ठीक है। आएंगे, वोट मांगेंगे, इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद वो हमें मिलेंगे नहीं, डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रहा है, उन्हें मिलना चाह रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक इमेज में जनरल लोगों की आइडिया ये होता है, ठीक है। तो इफ दे सी पॉलिटिशियंस डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज, इफ दे सी पॉलिटिशियंस डिफेक्टिंग फॉर, डिफेक्टिंग वर्ड्स क्या होता है, एक पार्टी से इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, जब इलेक्शन जीत गए किसी और पार्टी में चले गए, इसको क्या बोलते हैं हम, डिफेक्शन। डिफेक्टिंग द वर्ड है, डिफेक्शन होता है, इसको डिफेक्टिंग बोल दिया है। फ्रॉम पार्टीज मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस, आते हैं इलेक्शन से पहले हम इसमें ये डेवलपमेंट करेंगे, आप इसमें रोड बना देंगे, बिजली बना देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे, तो इलेक्शन से पहले फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं। एंड टॉल क्लेम्स, बड़ी बड़ी बातें क्लेम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद वो आपको नहीं मिलेंगे। सो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक बोल रही है आपकी, ठीक है। मैनिपुलेटिंग डिफरेंट सेक्शंस, अब मैनिपुलेट मतलब धोखा देना, अपनी बातों में फंसाना। अब मैं इस एरिया में जाऊंगा, यहाँ पे एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मान लीजिए मुस्लिम्स रहते हैं, तो मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उनके डेवलपमेंट की बात करूंगा कि तुम्हारे एरिया में ये प्रॉब्लम्स है, मैं पर्टिकुलरली तुम्हारे रिलीजन के लिए ये काम करूंगा। फिर मैं दूसरे रिलीजन में आ रहा हूँ, क्रिश्चियंस रहते हैं वहाँ पे, मैं पर्टिकुलरली उनके डेवलपमेंट की, उनकी ग्रोथ, उनकी प्रॉफिट की बात करूंगा, चाहे मैं उसे फुलफिल करूँ ना करूँ, पर मैं अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास अलग अलग स्ट्रेटेजीज लेके जा रहा हूँ उनको अपनी तरफ इंक्लाइन करने के लिए। तो यहाँ भी इसलिए टर्म क्या लिखा हुआ है, मैनिपुलेट करना। अगर मैं आपको अपनी तरफ कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसी बातें कर रहा हूँ कि आप मेरी तरफ इंक्लाइन हो जाए, तो मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो इसमें मैनिपुलेट बहुत करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स बिफोर द इलेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस, परसुइंग पर्सनल और ग्रुप इंटरेस्ट रूथलेसली एंड इन वर्स्ट केस स्टूपिंग टू क्राइम। और इसी में पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा क्राइम भी होता है, जो हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज या जो लीडर पॉलिटिक्स में कंटेस्ट करता है किसी इलेक्शन को, किसी पोस्ट के लिए खड़ा होता है, तो वो ज्यादातर कौन होते हैं, जिसके पास मनी और मसल पावर दोनों होता है। अगर हम देखें कोई सिंपल आदमी है सोसाइटी का, कभी कोई इलेक्शन नहीं जीतेगा, ना वही कोई लड़ना चाहेगा। और वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है सोसाइटी में, ऑलरेडी वो एस्टैब्लिश हो रखा है ऑलरेडी, तब जाकर के वो कंटेस्ट करेगा इलेक्शन। तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा क्राइम भी होता है, क्योंकि बहुत सारी उसके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। मूवीज में देखा होगा ना, भाई जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके गुंडे वगैरह कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो जो रियल लाइफ है वो हमारी मूवीज में हम जो देखते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। ऑल दो 100% नहीं, बट सम पार्ट, इतना गुंडागर्दी तो नहीं चलती है, पर देखते हैं ना जबरदस्ती वोटिंग कैसे कराते हैं, उसको उनको ही कभी वो भूत को गायब कर देते हैं, कभी लोगों को गायब कर देते हैं, ठीक है, फोर्सफुली, कभी गिफ्ट्स दे करके। So prevalent in this way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promise their interest by any means possible, so here they are trying to see, mostly हम देख रहे हैं negative side of the
पॉलिटिक्स। जो लोग ज्यादातर जो पॉलिटिक्स को देख रहे हैं उनके माइंड में क्या है, नेगेटिव इमेज है, नेगेटिव रिफ्लेक्शन है ऑफ द पॉलिटिक्स। इन एग्जांपल से हमें पता चल रहा है। यहाँ पे एक ही पॉजिटिव आया था, वो क्या था, जो पॉलिटिशियंस खुद सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हमने जितने एग्जांपल्स देखे हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग डायमेंशंस देखे, तो हमें डायमेंशन ज्यादातर कैसे दिखे, नेगेटिव दिखे। अनिशा नींद आ रही है, लग रहा मुझे, ठीक है। इफ यू सी अ क्रिकेटर मैनिपुलेटिंग, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अब क्रिकेट टीम है, आईपीएल बहुत होता है, हम बोलते हैं ना उसकी तो जान पहचान की इसलिए टीम, थोड़ा टैलेंट तो होना चाहिए, पर स्टिल वहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है कि जिसकी जान पहचान है, जो पैसा खिला सकता है, जिसकी कोच या सिलेक्टर के साथ अप्रोच वर्ड यूज करते हैं, अप्रोच है, उनका काम क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। हो सकता है मैं ज्यादा डिजर्विंग हूँ, लेकिन मेरे क्वांटिटी कोई दूसरा प्लेयर भी खेलता है, तो मेरे से पहले उसको एक मौका मिल जाएगा खेलने का, क्योंकि उसके पास क्या है, अप्रोच है। तो यहाँ और वो अप्रोच कहाँ से होता जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम से और पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे हम अब जो पॉलिटिक्स का मतलब समझ रहे हैं, सिंपल एग्जांपल से समझ रहे हैं, जो एवरीडे लाइफ में हम अपनी क्लास में भी देखते हैं, आप स्कूल में भी देखते हैं, आप घर में भी देखते हैं, आप अगर कहीं बाहर ग्रुप में जाते हैं, डांस ग्रुप है आपका, कोई भी ग्रुप है, उसमें भी आप देखते हैं। तो हम नॉर्मली एक टर्म यूज करते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा क्या करता है, पॉलिटिक्स करता है। अगर हम देखते हैं कोई इंसान इधर भी बात कर रहा है, उधर भी बात कर रहा है, इधर की बातें उधर कर रहा है, उधर की बातें इधर कर रहा है, इस टाइप की पर्सनैलिटी को हम क्या कहते हैं, ये बहुत पॉलिटिक्स बाज है, नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में। तो जस्ट सी, हमने पॉलिटिक्स की इमेज हमारे माइंड में क्या है कि जो वर्ड है पॉलिटिक्स, हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं। एक जो वर्ड होता है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिक्स, उसको हमने एवरीडे लाइफ में यूज करना। हम फैमिली में बोल सकते हैं कि ये तो बहुत पॉलिटिक्स करती है, आपकी बहन है, ठीक है, पापा से कुछ कह दिया, मम्मी से कुछ कह दिया, तो आप फैमिली में से क्या बोलोगे, ये बड़ी पॉलिटिक्स करती है, ठीक है। तो अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए हम जब अपने मीन्स को यूज करने लगते हैं, उसको हम पॉलिटिक्स बोलने लगते हैं। दैट इज व्हाई एक यहाँ पे एग्जांपल दिया क्रिकेट का। इफ वी सी अ क्रिकेटर मैनिपुलेटिंग टू स्टे इन द टीम, और अ फेलो स्टूडेंट ट्राइंग टू यूज हिज फादर्स पोजीशन, और अ कोलीग इन ऑफिस माइंडलेसली एंडिंग विद द बॉस, कोई ऑफिस में अपने बॉस की हर बात मान रहा है, सब बोलेंगे ये तो बड़ी चापलूसी करता है, बोलते हैं बटरिंग करता है, बहुत पॉलिटिक्स बात है, तो उस पर किसी को ट्रस्ट नहीं होगा जल्दी से। क्रिकेट टीम में नहीं आ रहा था, अपने पापा की पॉलिटिकल पोजीशन का यूज करके उसने वहां पे जगह ले ली। इस टाइप के कुछ एग्जांपल दिए हुए, इन सब को हम रिलेट कर देते हैं टर्म पॉलिटिक्स से। सो ओके, और अ कोलीग इन ऑफिस माइंडलेसली एग्रीइंग विद द बॉस, we say he or she is playing dirty politics। तो इन सब एग्जांपल्स को हम मेनली अपनी एवरीडे लाइफ में, अभी पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहा हूँ, जो मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, ठीक है, किसी प्लेयर का एग्जांपल दिया, या ऑफिस में कोई अपने बॉस के साथ कैसे ट्रीटमेंट कर रहा है, हर बात पे हाँ हाँ कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दे आर प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स। डिsillusioned by such pursuits of selfishness we despair of politics। तो इट मींस हमने जो ये पॉलिटिक्स को हमने किससे रिलेट करने शुरू कर दिया है, हमने इसको एक वर्ड से शुरू कर दिया है, सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस, ठीक है। तो इसीलिए हम जब नेगेटिव सेंस में इसका वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए करते हैं जो सेल्फिश बिहेवियर अपने प्रॉफिट के लिए यूज करता है, दूसरे लोगों को ध्यान नहीं देता है, दूसरों को क्या फायदा हो सकता है या नुकसान, उसको हम बोलते हैं सेल्फिश। तो पॉलिटिक्स वर्ड हम सेल्फिश लोगों के लिए यूज कर देते हैं इन एवरीडे लाइफ। We despair of politics, we say I am not interested in politics, or that I am going to stay away from। तो इस वजह से लोगों का बेसिकली, अगर मैं आपको बोलूँगा आप बहुत पॉलिटिक्स करती हो, तो आप उसको क्या लोगी, नेगेटिव सेंस में लोगी, तो आप क्या बोलेगी, मैं पॉलिटिक्स से दूर रहूंगी, आई एम नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। तो एक टाइप से आपको इस टॉपिक में समझना है, जो पॉलिटिक्स कोई बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है पॉलिटिक्स, एक पब्लिक की सर्विस। बट इन एवरीडे लाइफ हमने उसको ऐसे ग्रो होते हुए देखा है कि हमने उसको क्या, किस वर्ड से रिलेट करना शुरू कर दिया है, सेल्फिश मोटिव। इसमें सेल्फिश लोग होते हैं, अपना मोटिव और अपना प्रॉफिट देखते हैं, और तो हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है, बट ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, जो हम मानते हैं। अगर मैं आपको पॉलिटिक्स बोलूं कि एक लड़की बड़ी पॉलिटिक्स करती है, लड़का बहुत पॉलिटिक्स करता है, यू विल टेक दैट कमेंट एज अ नेगेटिव कमेंट ऑन योरसेल्फ। आप सोचोगे सर मुझे कुछ और बोलना चाह रहे हैं, कि मैं क्लास की इधर की बात उधर कर रही हूँ, या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ, तो इससे समझ सकते हैं पॉलिटिक्स का क्या मतलब हो गया। तो मोस्टली अगर हम लोगों को बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे, we say I am not interested in politics, or that I am going to stay away from politics। हम पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हम सेल्फिश नहीं है। It is not very ordinary people who despair of politics, even businessmen। ordinary लोगों की बात ही नहीं है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं and entrepreneurs routinely blame politics for their woes, even as they benefit from and fund various politics। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे अंबानी अंदानी जो, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और तो उनसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करते हैं, फंडिंग भी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को फंड क्यों देते हैं, अगर वो बीजेपी को फंड दे रहे हैं, पैसा पहुंचा रहे हैं, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है पार्टी का, तो जब वो पॉलिसी मेकिंग्स करेंगे, डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाएंगे, तो उसमें वो किसका ध्यान रखेंगे, किसको प्रॉफिट हो उन पॉलिसी से,
प्राइवेट सेक्टर्स को, और पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को जो उनकी पार्टी को क्या कर रहा है, फाइनेंशियल फंडिंग। इसलिए आप न्यूज में डेली देखते होंगे मोदी की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कनेक्ट किससे करते हैं हम, अडानी, अंबानी, ठीक है। हम सोचते हैं जो ये इतना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है किस लिए हो रहा है, ताकि किसको प्रॉफिट पहुंचे, इन बिजनेसमैन को। इन रिस्पॉन्स उसके जो पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। अब इसका 100% प्रूफ नहीं है, बट न्यूज में इस टाइप से रिलेट किया जाता है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं बिजनेसमैन भी वैसे दिखाते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, बट बहुत क्लोजली लिंक्ड रहते हैं। तो और वो क्यों नहीं दिखाते कि हम लिंक्ड हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स को क्या माना जाता है, सेल्फिश, गलत मान रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटी में, ठीक है। सिनेमा स्टार्स देखा है, बहुत सारे स्टार्स थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, रोल मिलने कम हो जाते हैं, वो किस में आ जाते हैं, हेमा मालिनी, ठीक है, जया बच्चन, हम देखते हैं अलग अलग लोग किसमें पहुंच जाते हैं, पॉलिटिक्स में। तो सिनेमा स्टार्स आल्सो कंप्लेन ऑफ पॉलिटिक्स, ऑल्दो कंप्लेन करते हैं पॉलिटिक्स की, दो दे सीम टू बी एडिक्वेट एट द गेम वंस दे जॉइन इट। जब वो खुद ज्वाइन कर लेते हैं वो खुद भी वैसे ही हो जाते हैं। उससे पहले वो पॉलिटिक्स को कह रहे होते हैं नहीं नहीं हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं। बट वंस वो उसमें कनेक्ट हो जाते हैं फिर वो वही सारी चीजें फॉलो कर रहे होते हैं जो पॉलिटिक्स में हो रही होती हैं। तो यहाँ तक हमने देखा पॉलिटिक्स का मीनिंग हमारे लिए आज की लाइफ में इन द करंट सिनारियो ऑफ आवर कंट्री, कॉमन पर्सन के लिए पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मतलब है सुमन, नेगेटिव है पॉजिटिव है? और उसकी रियलिटी क्या है, नाउ विल लर्न। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स नेगेटिव है, बट ये हमने जो पढ़ा है ये जो कॉमन पर्सन की मेंटालिटी है, थिंकिंग है, वो है। या सुमन यू आर सेइंग समथिंग, ठीक है, हमारी एग्जैक्टली क्या थिंकिंग है। तो हमने अलग अलग आइडियाज देख लिए किन किन लोगों के लिए किस किस टाइप के डिफरेंट मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स, बट इट इज नॉट ट्रू। इसका मीनिंग हमें समझना। अब ये जो आपने पढ़ा ये किसके लिए पढ़ा हमने, जो हमने एग्जांपल्स, दिस इज जो इस लाइन के ऊपर हमें पता है। अगर आप क्लास 10 तक है, आप कॉमन पर्सन है, सिटीजन के, तो आपको इस लाइन के ऊपर इसकी रियलिटी पता है कि पॉलिटिक्स ये है। बट नाउ एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड वी आर स्टडीइंग अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, हमें इसकी क्या पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी। वी विल हैव टू गो टू द रूट्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसके कि what exactly politics is and why it is so important for the society, and basically politics is called, जब खुद बैठ जाया करो, ठीक है, and basically politics is called the integral part of the society। integral part मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। सोसाइटी और पॉलिटिक्स को कभी अलग नहीं किया जा सकता। सोसाइटी का अगर आपको डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए, हमारी सोसाइटी आराम से चलती रहे, उसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम एक बहुत जरूरी होता है, पॉलिटिक्स बहुत जरूरी होता है। तो अभी तक हमने नेगेटिव पॉइंट देखना है, अब हम क्या पढ़ने इसके रूट, रियलिटी क्या है। हो सकता है एक आम आदमी आपको मार्केट में मिल जाए, आप लोग 4 लोग बैठे हो, दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, लीडर तो ऐसे हैं, पॉलिटिक्स ऐसा हो रहा है इंडिया में, मुझसे ऐसी बातें हो रही होती है, अरे नेताओं ने तो लूट लिया, इस टाइप से होता है, ठीक है। मोस्टली यू विल फाइंड नेगेटिव, एक या दो होंगे जो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो इमेज ऐसी बन रखी है, उसको हम नेगेटिवली ही एक्सेप्ट किया है हमने हमेशा। बट आपका काम क्या है एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, हमें क्या करना है, उनको रॉन्ग प्रूफ करना है, रॉन्ग प्रूफ नहीं करना है, हमें उन्हें राइट मीनिंग बताना है पॉलिटिक्स का। हम वहाँ पे डिबेट नहीं करेंगे, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, हम ये बताएंगे कि पॉलिटिक्स रियल में है क्या। जिन चीज़ों को हम सोचते हैं सोसाइटी में, हमने इतने सारे एग्जांपल्स पढ़े ना, सेल्फिश नेचर से हमने कंक्लूड किया है, पॉलिटिक्स को कनेक्ट किया है, बट ऐसा नहीं है। उसका रियल मीनिंग क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इन द सेकंड पैराग्राफ। इतना क्लियर है? प्लीज सोना मत, इससे ज्यादा मैं इंटरेस्टिंग क्या बनाऊं, मैं डांस तो नहीं कर सकता फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू योर लेवल, लोकल लेवल तक ला रहा हूं। अगर आप अपनी फैमिली में पेरेंट्स का भी डिस्कशन सुनेंगे, आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो मोस्टली अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, अरे अंबानी तो उससे मिला हुआ है, वो पैसा उनको खिलाते हैं, इनके लिए काम करता है, इन्हीं का डेवलपमेंट हो रहा है, गरीब आदमी तो गरीब का गरीबी है, हमें क्या फायदा हो रहा है इलेक्शन से वोट देके। हमारे पहले वही हाल थे, आज भी वही है। नॉर्मली वी सी दिस टाइप ऑफ टॉक्स amongst your family members also. So now let's understand the roots of the politics, real meaning. We are thus confronted with conflicting image of the politics. इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें क्या पता चल गया कि पॉलिटिक्स की इमेज कैसी है, कॉन्फ्लिक्टिंग, जिससे लोग अगेंस्ट है। इन पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स एंड अनडिजायरेबल एक्टिविटी। अब दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन, अगर इतना ही नेगेटिव है, पीपल हैव सो मेनी व्यूज, और सारी व्यूज मोस्टली कैसी है, नेगेटिव है। पीपल आर अगेंस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, दे डोंट वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, दे डोंट वांट टू बी कनेक्टेड विद द पॉलिटिकल पार्टीज, कि उनका नाम हम कनेक्ट भी करें पॉलिटिक्स से, वो दूर रहना चाहते हैं। क्लियरली बोला, वी डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, हमें पॉलिटिक्स के साथ मत जोड़ो। और पॉलिटिक्स को हमने पॉलिटिकल सिस्टम तक नहीं रखा, अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हम किस टर्म का यूज करने लगे हैं, सेल्फिश नेचर के लिए। जो सेल्फिश होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉलिटिक्स। सोचो कितनी बड़ी बात है। पॉलिटिक्स को हमने एग्जैक्टली क्या मीनिंग ले दिया है, सेल्फिश, जो पर्सनल मोटिव के लिए सारे काम करता है, अपने प्रॉफिट निकालने के लिए सारे काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, पॉलिटिक्स इतना बेकार एक्टिविटी है। दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चन, इज पॉलिटिक्स एन अनडिजायरेबल एक्टिविटी दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम एंड गेट रिड ऑफ, हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें इसके आसपास भी नहीं होना चाहिए।
और इट इज अ वर्थवेल एक्टिविटी विच वी मस्ट इंगेज, या ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इन विच वी एवरीवन शुड बी इंगेज एंड वी शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली विद इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर वर्ल्ड। अगर हमें बेटर वर्ल्ड बनाना है, बेटर सोसाइटी बनानी है जहाँ हर ह्यूमन एक अच्छा लाइफस्टाइल और लाइफ स्टैंडर्ड को फॉलो कर सके, उसके लिए पॉलिटिक्स जरूरी है। सो दीज आर द बोथ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जरूरी नहीं है या जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है इतना पढ़ने के बाद। नाउ दे विल आंसर यू कि पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। It is unfortunate that politics has come to associate with the pursuit of self interest। बहुत unfortunate है, बहुत गलत बात है। Unfortunate मतलब क्या होता है, मीनिंग अनफॉर्चुनेट का? हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण, कुछ ऐसे बोलते हैं ना। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये हमारी कंट्री के लिए कि हमने पॉलिटिक्स को किससे कनेक्ट कर दिया है, सेल्फिश नेचर या सेल्फ इंटरेस्ट मोटिव, पर्सनल प्रॉफिट की हम बात करते हैं, उससे कनेक्ट कर दिया है। तो ये बहुत गलत बात है। बाय एनी एंड एवरी मेथड वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ये आपको बताना है लोगों को एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि पॉलिटिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड कंट्री भी बोल सकते हैं। We need to realize, पहले तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा what is the real meaning of politics। It is an important and integral part of any society। महात्मा गांधी अब यहाँ पर आ जाते हैं। I told you whenever we will talk about some theories, हम किसके बेस पे बोलेंगे, किसी ना किसी स्कॉलर के बेस पे हम बोलेंगे। तो अब कौन बता रहे हैं, महात्मा गांधी बता रहे हैं कि कैसे पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी। इंटीग्रल पार्ट मतलब हमारे ये ऑर्गन से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आईज, नोज, हैंड्स, तभी हम फंक्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से सोसाइटी के लिए पॉलिटिक्स एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम सोसाइटी से अलग कभी भी नहीं कर सकते। आप कितना भी नेगेटिव बोल लो उसके बाद, जो इमेज बनी हुई है बट स्टिल वो एक बहुत इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। गांधी जी ने क्या बोला है, देखिए, महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व दैट politics envelops us like a coil of the snake and there is no other way but to wrestle with it। उन्होंने बोला, आप कितना भी नेगेटिव बोलो, गांधी ने बोला हम जैसे स्नेक होता है, कॉइल बना लेता है, हमें कुंडली बोलते हैं हिंदी में, अजगर को देखा है कैसे अपने उसको, तो हम ऐसे ही फंसे हुए हैं पॉलिटिक्स में। आप चाहो भी तो उससे अलग नहीं हो सकते, आप कितना भी रेसल कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकते हैं। हम एक स्नेक की कॉइल में फंसे हुए हैं। सो इट इज, हमें उसके साथ रहना सीखना होगा। ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व द पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस, मतलब हमें लपेटे हुए हैं, एनवेलप्स अस कवर करता है हमें लाइक द कॉइल्स ऑफ द स्नेक। कॉइल होता है कुंडली बनाता है जैसे स्नेक, ओके, कॉइल्स ऑफ द स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे आउट बट टू रेसल। हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बस हमें उसके साथ जीना सीखना ही होगा। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सोसाइटी, कोई छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी बिना पॉलिटिक्स के सर्वाइव नहीं कर सकता है, ओके। एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक अब हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इसमें पॉलिटिक्स वर्ड का अगर आप नेगेटिव सेंस समझोगे तो वो अलग है, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स बनने हैं, रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट होना है, कौन अथॉरिटीज होंगे। मैं क्लास में आ रहा हूँ, मैं क्लास टीचर हूँ किस क्लास का, मुझे अटेंडेंस देखनी है, मुझे ऑनलाइन का सबमिशन का देखना है, तो ये इसे आप पॉलिटिक्स नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, पॉलिटिकल सिस्टम है एक, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी एक सिस्टम की जरूरत है, कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है, वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन को भी एक सिस्टम की जरूरत होती है, ठीक है। दैट इज व्हाई दे हैव रिटन हियर अ सोसाइटी दैट वांट्स नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हर सोसाइटी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है, ताकि क्या हो पाए, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। लोकल गवर्नमेंट में क्या था, अगर हम गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं करते तो लोकल गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। कौन होता सरपंच, कौन पंच होता, कौन लोग वोट देते, ये क्लियर ही नहीं हो पाता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, एक रूल्स बना दिए। कॉन्स्टिट्यूशन 73rd 74th अमेंडमेंट में लिख दिया कि हु विल बी द पीपल, जो वोट देंगे 18+ वाले लोग वोट देंगे, दे विल सिलेक्ट द सरपंच, दे विल सिलेक्ट द पंच एंड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट ग्राम पंचायत, जिसमें पंच सरपंच आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। और द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत क्या होगा, देखेंगे कि ये अच्छे से काम कर रहे हैं, दे विल मॉनिटर कि डेवलपमेंट वर्क विलेज में अच्छे से। तो हमने क्या असाइन ड्यूटीज दे दी हैं। तो इसीलिए पॉलिटिक्स हर सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम हट जाएगा, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी, किसी को पता ही नहीं होगा किसकी राइट्स है, किसको पावर है, कौन डिसीजन मेकिंग करेगा, सब एक दूसरे के ऊपर क्या रह जाएंगे, डिपेंडेंट रह जाएंगे, और किसी भी सोसाइटी का ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा। सपोज दो फैमिली में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया इस को लेके, खेत को, इस प्लॉट ऑफ लैंड को लेकर के, इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, एक दूसरे को मारपीट देंगे, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, पुलिस है, कोर्ट है, लॉ है। तो ये किसके अंदर आ जाता है, हमारा पूरा
पॉलिटिकल सिस्टम के। तो सोसाइटी को मैनेज करने के लिए डिफरेंट रोल्स लोगों को प्रोवाइड करने के लिए देयर शुड बी अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिक्स की इमेज हमने जो इतनी नेगेटिव कर रखी है उससे बढ़ के हमें सोचना है, तो हमें इसके रूट्स के बारे में सोचना है। तो a society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interests of its members. तो कोई भी सोसाइटी होगी that wants to sustain, तो उसको क्या समझना पड़ेगा, नीड्स क्या है वहाँ के लोगों की, इंटरेस्ट क्या है वहाँ के लोगों के। नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज फैमिली, हम एक फैमिली की बात करते हैं। फैमिली, ट्राइब्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैव इमर्जेंस टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस। अगर हम फिर आपकी फैमिली का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपकी मम्मी, आपके पापा को पता है व्हाट आर द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ माय डॉटर और ऑफ माय सन। अगर वो आपका ध्यान नहीं रखेंगे, आपके लिए वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है। आपको इसको या कोचिंग लेनी है, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, आपको मैथ्स की कोचिंग लेनी है, आपको डांस क्लास जाना है, आपको इसको जिम जाना है, तो अलग उसका ध्यान कौन रख रहा है, आपके पेरेंट्स। तो एक फैमिली के अंदर क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग हो रही है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और अगर वो डिसीजन मेकिंग अच्छी हो रही है तभी आप भी खुश हो, पेरेंट्स भी खुश है। वरना आप बोलकर हमारे पेरेंट्स तो हम कुछ कराते ही नहीं है, साथ वाले फ्रेंड्स ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली में हमेशा क्या रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। आपकी मम्मी बोलेंगे हम तो कभी कहीं घूमने जाते ही नहीं है, पड़ोस की फैमिली तो कभी यहाँ जा रही है, समर वेकेशन में 15 दिन के लिए वहाँ जा रही है ना, आप लोग तो फिर अपने पापा से नाराज हो जाओगे ना। तो फैमिली में डिसीजन मेकिंग कौन करता है, फादर और मदर। तो छोटी सी लेवल बतानी, जब एक फैमिली में भी हमें एक सिस्टम की जरूरत है चलाने के लिए, तो व्हाई नॉट फॉर अ सोसाइटी, फॉर अ कंट्री। तो पॉलिटिकल सिस्टम इंटीग्रल पार्ट है हमारी सोसाइटी का, ठीक है। A number of social institutions such as family, tribes, economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. Such institutions help us find ways of living together and acknowledge our obligations to each other. Another such institution, government plays an important part. ऐसे ही फैमिली से शुरू होकर, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से शुरू होकर हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, गवर्नमेंट तक। अब अपनी फैमिली के लेवल के डिसीजन मेकिंग आपके पापा कर रहे हैं, एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल है, इसके अंदर प्रिंसिपल मैम कर रही है, ऐसे अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग हो रही है। बट व्हाट अबाउट द होल सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कौन डिसीजन लेगा, विच सोसाइटी और विच पीपल हैव वेरियस डिजायर्स, उनकी डिजायर्स और नीड्स को फुलफिल कौन करेगा, उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी हमें, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जब बनेगी तो कैसे होगा, प्रॉपर इलेक्शंस होंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे, हम उन्हें पावर देंगे, और उन पावर्स के बेस पे वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। यही तो पॉलिटिक्स है। तो इसको हम पॉजिटिवली देखें कि उनका काम क्या है, वो पब्लिक सर्विस रेंडर कर रहे हैं हमको, ठीक है। तो अमंग सच इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो फैमिली से शुरू होते हुए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से शुरू होते हुए हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, गवर्नमेंट तक। गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन, मैंने बोला था इसमें क्या होता है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल थ्योरी में क्वेश्चन रीजनिंग, तभी तो हमने ह्यूमन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने इस सब्जेक्ट को बनाया है, क्वेश्चन आंसर्स एंड कम्युनिकेशन। सो जब हमने बोल दिया गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए, एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हुए, तो अब ये बोलते हैं क्वेश्चन, हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट्स पढ़ रहे हैं, अभी ऊपर का तो पढ़ते हुए आए हैं गवर्नमेंट कैसे बनती है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म एंड हाउ देयर फंक्शन इज दस एन इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का मेजर फोकस क्या रहता है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी और डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, किसके पास कितनी पावर होगी, ठीक है, एंड हाउ दे फंक्शन, और वो फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट और इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ द पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का काम ही क्या है, देखना गवर्नमेंट कैसे बनेगी, किसके पास क्या फंक्शंस होंगे, किसके पास क्या पावर्स होंगी, और वो कैसे फंक्शन करेंगे, यही मेजर फोकस होता है पॉलिटिक्स का। इससे पहले हम पॉलिटिक्स से पढ़ते हुए, कहीं करप्शन हो रहा है, कहीं क्रिकेट का हमने एग्जांपल देखा, हम उसे सेल्फिश बिहेवियर से, सेल्फ इंटरेस्ट से, सेल्फ मोटिव से उसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो वो सब हम एवरीडे लाइफ में हमने जो सीखा है, जो रियलिटी में हमें लगता है, बट रियलिटी क्या है रूट्स में पॉलिटिक्स की, कि गवर्नमेंट कैसी होगी, गवर्नमेंट कैसे डेवलपमेंट करेगी, क्या पावर्स गवर्नमेंट के पास होगी, क्या उनकी लिमिटेशंस होंगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लिखी हैं, ऑल दैट इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स in the real sense, okay, but politics is not confined to the affairs of government। पर ये भी बोल रहे हैं बस पॉलिटिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है, बेस यही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बस पॉलिटिक्स कहाँ तक रह जाएगी, गवर्नमेंट तक, ठीक है, कि बस गवर्नमेंट बना दी पॉलिटिक्स खत्म। इट इनफैक्ट व्हाट गवर्नमेंट्स डू इज रेलेवेंट बिकॉज इट इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल। इंपॉर्टेंट होगा कि गवर्नमेंट कैसे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उससे हर इंसान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी लाइफ अच्छी है बुरी किसी सोसाइटी में, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गवर्नेंस कैसी है, गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट कैसा ग्रोथ कर रही है, कैसा डेवलपमेंट कर रही है। तो हमने गवर्नमेंट तो बना दी, हमने सिस्टम फॉलो किया किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लिया, पावर्स भी दे दी, बट अब इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि ये अपने ड्यूटीज को
अलग अलग सोसाइटी के पार्ट्स में कैसे परफॉर्म करेगी। तो इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट बन गई, ड्यूटीज दे दी, फंक्शंस दे दिए, पावर दे दी, बट हमारी सोसाइटी में लोगों की नीड्स डिमांड्स को कोई गवर्नमेंट कैसे फुलफिल कर रही है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में असर किसका पड़ता है, हमारी सेंटर या स्टेट में गवर्नमेंट कैसी है। जिस टाइप की पॉलिसी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी उस टाइप की लाइफ हमारी सोसाइटी में होगी, ठीक है। But politics is not confined to the affairs of the government. In fact, what government do is relevant because it affects the life of the people in many different ways. We see that government determines our economic policies. सबसे पहली बात हम देखते हैं गवर्नमेंट जब बनती है, हमने पावर दे दिए, फंक्शन दे दिए, गवर्नमेंट बन गई, वो क्या बनाती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है हमारे लिए, ठीक है। The policies can help to improve the lives of the people. Certainly, अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी जो हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का ध्यान रख रही है, सबको एक साथ लेकर के, मैंने बोला था लोकल गवर्नमेंट नीचे से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हर एक इंसान तक उसका बेनिफिट पहुंच रहा है इस पॉलिसी का। इट मींस पीपल विल बी हैप्पी। तो गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी सोसाइटी में, लोग खुश हैं या परेशान है या नाराज है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो उनकी पॉलिसीज, द पॉलिसीज कैन हेल्प टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल बट एन इनएफिशिएंट। बट ऑन द अदर हैंड, अगर अच्छी गवर्नमेंट होगी, अच्छी पॉलिसीज होगी तो लोगों का डेवलपमेंट होगा, पीपल विल बी हैप्पी इन द सोसाइटी। बट इन द सेम वे यही गवर्नमेंट बन जाती है कोई गवर्नमेंट जो अपना वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है, अच्छी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। पार्ट पॉलिटिक्स का ही था, पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या था, लोगों को खुश करना है, ऐसी पॉलिसीज लाना, खुश करना इन द सेंस टू डू द प्रॉपर डेवलपमेंट बेसिस ऑन द इकोनॉमिक सोशल जस्टिस। बट इसी गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स का यूज सही से नहीं किया, तो यही गवर्नमेंट दिस कैन बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। एंड हाउ इट कैन बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, इट्स रिटन क्लियरली here in this line. We see that government determines our economic policies and foreign policies and educational policies. अच्छा ये वाली लाइन छोड़ दी थी, sorry. But politics is not confined to the affairs of the government. In fact, what government do is relevant because it affects the life of the people in many different ways. We see the government determines our economic policies and foreign policies and education policies. जो अच्छी गवर्नमेंट होगी, अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी आपकी, अच्छी फॉरेन पॉलिसीज, हमारी और कंट्री से रिलेशंस कैसे होंगे, ट्रेड इंप्रूव होगा, ट्रेड इंप्रूव होगा तो हमारी कंट्री में इकोनॉमी होगी, प्रोस्पेरिटी आएगी, आपकी एजुकेशन पॉलिसीज और अच्छी बेटर होंगी। These policies can help to improve, और जब ऐसी पॉलिसीज आएंगी लोगों की लाइफ इंप्रूव होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर ऐसी गवर्नमेंट आती है जो कैसी है, इनएफिशिएंट, उनकी जो पावर से अपनी पावर से अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट कैन आल्सो एंडेंजर पीपल लाइफ एंड सिक्योरिटी। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो इनएफिशिएंट है और करप्शन को प्रपोर्ट करती है, उसकी वजह से लोगों की लाइफ कैसे हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी सोसाइटी में, क्योंकि वो अच्छी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उल्टा लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई है, हमारी सिक्योरिटी बहुत थ्रेट में है। If the government in power allows caste and communal conflicts, अब मान लो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है जो किस चीज को प्रमोट कर रही है, कास्ट और कम्युनल, मतलब कास्ट और रिलीजन के बीच में क्या हो, लोगों के बीच में डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ऐसी एक्टिविटीज कर रही है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हमारी सोसाइटी में, तो डेवलपमेंट हो पाएगा, ग्रोथ हो पाएगा, हम यूनिटी इंटीग्रिटी की बात कर पाएंगे नहीं, तो प्रोग्रेस की जगह हमारा क्या होगा, हम नीचे आएंगे, ग्राफ हमारा नीचे आएगा। If the government in power allows caste and communal conflicts to occur, market close down, क्या होता है, बंद हो जाता है, हड़ताल हो जाती है, प्रोटेस्ट हो जाते हैं, लोग रोड्स पे निकल जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो जब ऐसी एक्टिविटीज होती है तो अल्टीमेटली किसकी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, कॉमन पीपल। मार्केट बंद हो गया तो जो सेल होनी चाहिए थी, जो सेल के ऊपर डिपेंडेंट है उसकी फैमिली, वहाँ पे सेल परचेज का काम नहीं हो पा रहा है, और मार्केट में कितने सारे लोग डिपेंडेंट रहते हैं, स्कूल्स बंद हो जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल टू द, जो मार्केट से गाड़ियाँ जाती है, बच्चे जाते हैं, डेंजर है, क्योंकि कौन सा माहौल बन गया सोसाइटी, एनवायरमेंट कम्युनल राइट्स का, रिलीजन या कास्ट के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जैसे मान लो हिंदू मुस्लिम के मुजफ्फरनगर में एक बार हुए थे, ठीक है, तो आप उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट्स क्लोज डाउन, स्कूल्स आर शट, दिस डिस्टर्ब्स आवर लाइफ, हमारी लाइफ इससे बहुत डिस्टर्ब होती है, वी कैन नॉट बाय थिंग्स दैट वी मे नीड अर्जेंटली, हो सकता है मार्केट में हमें कोई चीज बहुत अर्जेंटली चाहिए हो, कोई बहुत बीमार हो, कुछ मेडिसिन जरूरी हो, बट सब कुछ क्या हो रखा है, शट डाउन हो रखा है, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा कोचिंग में फीस दे दी की, आपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन किए हुए हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, साथ साथ जहाँ पे आपने फीस पे कर रही है इंस्टीट्यूशंस की, डांस क्लासेस की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू आर नॉट एबल टू अटेंड दोज इंस्टीट्यूशंस आल्सो, तो नुकसान किसका रहा, कॉमन पीपल का, ठीक है। Those who are sick cannot reach the hospitals, even the school schedule gets affected, syllabus cannot be completed, we may have to take extra coaching for the exams, जिसमें आपको क्या है, जब स्कूल में सिलेबस नहीं होगा आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, कोचिंग लोगे तो एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस आपके पेरेंट्स को देनी पड़ेगी, ठीक है। if on the other hand the government makes policies to increase literacy and employment,
तो यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, हम बोल रहे हैं पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग। अगर गवर्नमेंट अच्छी होगी तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और फॉरेन नई नई पॉलिसीज बनेंगी जिससे हमारी लाइफ अच्छी होगी। बट ऑन द सेम वे गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, करप्ट है, इनइफेक्टिव है, तो वहां पे वो किसको प्रमोट करेगी, कम्युनल और कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मार्केट बंद होंगे, आपके एजुकेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा एंड सो ऑन। तो हमारे लिए क्या होगा, ओवरऑल देखा जाए तो हमारा डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं होगा एंड वी विल फील लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। ओके, बहुत लंबा